Good morning students. I am going to taking your first class of science of class 7's chapter name is nutrition in plants. So in this chapter we will study about nutrition in plants. Before studying that we know to need very important, में जानना बहुत ही जरूरी है what is nutrition. न्यूट्रिशन क्या है? सो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन प्रोसेस बाय विच वी टेक in food and utilize in order to survive. A process by which we take in food and utilize it in order to survive. So you have already learned in class 6 that food is very important part for us. Food हमारे लिए बहुत ही important है because why we need food? That is the question. Why we need food? We need food to get energy, for growth, for various functions of our body, like as digestion, excretion, breathing. That are the all activities of function. So we need food to get energy, for growth, for various functions of our body, for repairing damaged tissues. So as like us, we take in food. Then why does we take in food? So because food gives us energy for growth, for various functions of our body, for repairing damaged tissues. So basically if you are taking in something, कुछ भी आप ले रहे हो and utilizing that, उसे utilizing कर रहे हो, so that it will nutrition, ये nutrition होगा. So here is the definition comes in. What is nutrition? The process by which we take in food and utilize it in order to survive. It is called nutrition. And our next topic is the mode of nutrition. So before knowing that, we all know that we have food, we take in food. So our food have main components that perform various functions and various activities. And food has main components: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, roughage, minerals, and water. That are the most important components of food. And these are in amount of these components in our food are called nutrients. जो nutrients कहलाता है. So nutrition word comes from nutrient.
like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, raffles, mineral and water. So next thing is mode of nutrition. Nutrition का mode क्या है? So here is the nutrition classified in two modes: autotrophic mode, and heterotrophic mode. So these words consist of two words, auto and trophic. So as we know that, and we have already studied in class 6, autotrophs, heterotrophs. So these are this mode is autotrophic. So here is auto. Auto means self. Auto means self. And trophic. Trophic means nourishment. Nourishment means that prepare their own food by themselves. जो अपना फूड स्वयं सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, that are called autotrophic. And here is the heterotrophic. Hetero means others, and trophic means same as nutrition, nourishment. Means that living organism who depend upon others for their nourishment, जो अपने nourishment के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, that are heterotrophics. So example, take one example, autotrophic mode. Green plants. Green plants are also called producers. ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ. बिकॉज ये अपना स्वयं फूड जो है वो स्वयं प्रिपेयर करते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड क्लोरोफिल. सो दिस कैन बी classified in two modes. Autotrophic can be classified in two modes. Autotrophic has two modes: autotrophic. And second one, chemio-autotrophic. So as we know that photo means light, and you have studied in last classes what is photosynthesis. So photosynthesis word photo autotrophic mode से related है. So photo means light और autotrophic मतलब सेल्फ नरिशमेंट. लाइट की हेल्प से जो सेल्फ नरिशमेंट है, that is called photo autotrophic. and chemio autotrophic, जो autotrophic केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? केमिकल रिएक्शंस पे. केमिकल रिएक्शंस से पे बेस्ड है. केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो नरिशमेंट मिलता है वो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक. फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड में plants prepare their own food with the help of sunlight. Plants get energy from the sun and produce food. So we can say that sun is the ultimate source of energy. And what would happen if there no sunlight? So there would not be production of food, and all living things cannot survive, will not be survive. मतलब अगर यदि सनलाइट नहीं होगी,
सो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिल पाएगा. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, in which process plants there make food with the help of sunlight, water, air, and in the presence of chlorophyll. So all living things depend on directly or indirectly on green plants, because green plants are the producers of food. Green plants, so green plants called producers, इसीलिए green plants को producers भी कहते हैं. And other mode is heterotrophic mode. As we know that hetero means other, trophic means nourishment, that living organism who depend on directly or indirectly upon others, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इनको भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मोनोजोइक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस. We will study about in 4 categories later. बाद में हम इनके बारे में पढ़ेंगे. Before that we will study about this process, autotrophic mode and photosynthesis process. Now one question comes in mind, that light where does come from? कहाँ से आती है ये लाइट कहाँ से मिलती है? तो ये लाइट हमें सन से मिलती है. सन से ये लाइट सन से हमें मिलती है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. दैट लाइट कम्स फ्रॉम सन. सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. Ultimate source of energy. Let me one thing clear out, because in the help of sunlight, we can say that sun is the ultimate source of energy. So if what would happen if there is no sunlight? यदि sunlight नहीं होगी तो what would happen, क्या होगा? So there would be no production of फूड. जब सनलाइट नहीं होगी तो फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा इन प्लांट्स में फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा. एंड दैट हेटेरोट्रॉफ्स आर डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, एंड ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफिक प्लांट्स. सो दे कैन नॉट बी गेट फूड फ्रॉम एनीवेयर. उन्हें कहीं से भी फूड नहीं मिल सकता है. एंड दे कैन नॉट सर्वाइव, एंड दे फॉर देयर दे कैन नॉट सर्वाइव. सो इफ देयर वुड नॉट बी प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स, यदि प्लांट्स के द्वारा फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा, सो नो लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी सर्वाइव. कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकती है. सो वी कैन से दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसलिए हम कह सकते हैं सन क्या है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो एंड हियर आवर अदर टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. सो एज वी नो दैट in the presence of sunlight, plants make food with the help of air and water in the presence of chlorophyll. हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वह प्रोसेस है कि जिसकी हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर एंड एयर की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोसेसिंग कंप्लीट करते हैं. इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो if we talk about photosynthesis, यदि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, सो फोटोसिंथेसिस
word combines two other words, photo and synthesis. So photo means light. Photo means light. Synthesis means to combine. To combine. लाइट की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर होता है, व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो it is the process of photosynthesis. Our next topic is in about the photosynthesis process. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में ही है. आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो इन ब्रॉड वे, हियर इज द रिएक्शन कम्स. एक रिएक्शन आती है, वाटर, एयर in the presence of sunlight and chlorophyll. Water, air, sunlight, chlorophyll, that's starch and oxygen gas. So अब इसे हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमें ये जानना, वी नीड टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत जानना जरूरी है, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट वाटर एंड एयर. अब ये तो आपने सनलाइट जो था वो सन से मिल गया, अब वाटर एंड एयर ये कहाँ से उन्हें मिलता है. सो इट इज कॉल्ड, ऐसा कहा जाता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. जो लीव्स होती हैं आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. Leaves are food factory of the plant and it is also called kitchen of the plant. Leaves को kitchen of the plant भी कहा जाता है. तो the synthesis of food यानी the preparation of food in plants occurs in leaves. जो फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है. कहाँ होता है? लीव्स में. सो वाटर एंड मिनरल, जो वाटर होता है एंड जो मिनरल होता है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ? सॉइल में. सॉइल में जो प्रेजेंट होता है एब्जॉर्ब बाय रूट्स. रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. और वो कहाँ पहुंचता है? लीव्स में. आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. This is a plant. मार्कर की हेल्प से थोड़ा कम बन पा रहा है. सो सनलाइट, मिनरल्स प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. As we know that in our atmosphere carbon gas
इज प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो जो वाटर एंड मिनरल, सबसे पहली चीज वाटर और मिनरल जो है, दीज दे बोथ आर द रॉ मटेरियल ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस। जो फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स में होता है उसका वाटर एंड मिनरल जो है वो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। जो फूड मिनरल्स एंड वाटर्स जो है वो उसके रॉ मटेरियल्स हैं। और जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव्स तक, ये जो रूट्स से मिनरल एंड वाटर जाता है ये लीव्स तक जाता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जो हमारा ये लीव्स, ये जो प्लांट है इसमें बहुत ट्यूब लाइक्स वेसल्स होती हैं, बहुत ही पतली पतली वेसल्स होती हैं। एज लाइक आर बॉडी, जिस तरीके से हमारी बॉडी में पतली पतली वेसल्स जो होती है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, एज लाइक ह्यूमन बॉडी, एज लाइक इन प्लांट्स बिल्कुल थिन ट्यूब्स होती हैं, वेसल्स होती हैं जो पूरे ऑल ब्रांच, ऑल स्टेम, ऑल लीव्स, फ्लावर्स सब जगह तक प्रेजेंट होती हैं और दे ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर टू द लीव्स। ये जो भी लीव्स है ये दे कंटिन्यूअस पासेस न्यूट्रिएंट टू द लीफ। जो ये वेसल्स होती हैं ये कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स का जो है पासेज है, जो ट्रांसपोर्टेशन है कंटिन्यू लीफ तक करती हैं। सो एज वी नो दैट लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स जो होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं, बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। वाई? जो लीव्स होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं, बट अदर प्लांट्स के जो अदर पार्ट होते हैं एज लाइक फ्लावर, स्टेम, ब्रांचेस कैन नॉट, नहीं कर सकती हैं। क्यों? सो लेट यू नो दैट, आपको मैं बता दूं, ओनली ग्रीन लीव्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बिकॉज लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट। लीव्स में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये है क्लोरोफिल होता है। सो इट हेल्प्स टू कैप्चर या ट्रैप भी बोल सकते हैं, ट्रैप सनलाइट। ये क्या करता है? ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, ट्रैप करता है सनलाइट से इसकी एनर्जी को। सो जो ग्रीन पिगमेंट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से जो एनर्जी होती है उसे ट्रैप करता है एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। और यही एनर्जी जो है फूड प्रिपेयर में हेल्प करती है। वाटर इज प्रेजेंस, जो भी वाटर है, ये जो एयर वाटर है, ये तो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो तो रूट्स के हेल्प से चला जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। एंड द जो लीव्स है, हाउ डज दे ट्रैप, हाउ डज लीफ ट्रैप द सनलाइट? जो लीफ है वो सनलाइट को ट्रैप कैसे करती है? सो देयर इज द स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स, बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स में, एंड दे आर दीज गार्ड सेल्स सराउंडेड द लीव्स। लीव्स के चारों ओर ये गार्ड सेल्स होती हैं एंड दीज टिनी पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोमेटा। इसे स्टोमेटा भी कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा लीव्स ट्रैप द एनर्जी ऑफ सन। इसलिए ये जो लीव्स होती हैं स्टोमेटा से सनलाइट को ट्रैप करती हैं। सो इट इज द यूनिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द नेचर। ये हमारी नेचर का यूनिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी for all living organisms, because we know that and we have already studied about this topic. Living things breathe, living things can move, living things can reproduce, living things prepare food, living things need food. All living things cannot prepare food. सभी living things
फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती हैं, बट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की नीड बहुत होती है। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में ये बात हमेशा रखना, बिसाइड लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑल्सो। जो हमारा ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांच होती है उसमें भी टेक प्लेस लेता है ये, और ये उसमें भी हेल्प करता है। सो हमारा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो बिसाइड्स लीव्स इन स्टेम एंड इन ब्रांचेस टेक प्लेस ऑल्सो। सो वन थिंग, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है, इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस वुड नॉट बी एनी प्लांट, देयर वुड नॉट बी इन प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। बिकॉज एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड बाय मेड द प्लांट। जो भी प्लांट के द्वारा फूड बनाया जाता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म humans as like us, animals, directly or indirectly depend on the plants. And one more thing, अभी मैंने एक रिएक्शन यहाँ बताई थी। सो फिर जो प्रोडक्ट निकला था वो ऑक्सीजन भी था। स्टार्च के अलावा, स्टार्च क्या हो गया, स्टार्च हो गया जो भी प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया है। तो स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसी में फ्रूट के रूप में, किसी में रूट के रूप में, किसी में लीफ के रूप में, किसी में शूट के रूप में, और किसी में वेजिटेबल, किसी में फ्रूट के, किसी में फ्लावर के रूप में ये प्रेजेंट होता है। सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज एज आई टोल्ड बिफोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लिविंग थिंग्स ब्रीद, लिविंग थिंग्स ब्रीद भी करती हैं, यानी सांस भी लेती हैं। तो सांस में क्या लेती हैं? सो ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एंड दे फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ इन एनवायरमेंट में सर्वाइवल के लिए लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की भी बहुत जरूरत होती है। सो ऑक्सीजन इज, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस, एज मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, वाटर, एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, स्टार्च को वी कैन से कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ऑल्सो, एंड ऑक्सीजन गैस। सो ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीजिंग प्रोडक्ट है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीजिंग प्रोडक्ट है, एंड देयर विल नॉट बी ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वी कैन नॉट ऑल्सो सर्वाइव, हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। सो विदाउट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अगर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, सो लाइफ वुड नॉट बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ पे लाइफ भी इम्पॉसिबल है। तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एयर है, एयर का जो फॉर्म है वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।